Good morning, students. Hope you be fine at your respective places. Last time we were discussing the extinction, and we will continue that topic today also. Now, in that last topic, we have discussed what is extinction. Extinction is simply the complete elimination of a wild species. It is a natural process, but that process is very much slow. लेकिन उसमें हमने ये भी पढ़ा, but due to the activities, what we call as the anthropogenic activities, or we can say the human activities, जो rate of decline of these species, of wild species, it has become very much rapid in the last 100 or 200 years ago. Now, this extinction of the species, it can take place by three methods. It can take place by three ways. First one, that is the natural extinction. एक हमारे पास है natural extinction. Second हमारे पास है that is mass extinction. Third जो हमारे पास है that is called as anthropogenic extinction. Anthropogenic extinction. Now we will now try to discuss one by one. Natural extinction. कहा जाता है कि कुछ स्पीशीज दे डिसअपियर, वो खत्म हो जाते, वो नायाब हो जाते हैं. उसकी वजह यह है कि देयर टेक्स प्लेस सम चेंज इन एनवायरनमेंट. लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं दैट दे अपियर, एंड दीज न्यू स्पीशीज वो क्या करते हैं, दे आर अडेप्टेड टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट. दे अडेप्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को उस नए माहौल में अपने आप को तैयार कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल सिलेक्शन, एंड इट इज़ ए ग्रेजुअल, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. एंड ये काम जो है, ये एक्सटिंक्शन जो है, इट हैज़ टेकन प्लेस millions and millions of years ago, और अब भी चल रहा है. सो व्हाट हैपन द नेचुरल एक्सटिंक्शन, कि कुछ ऐसी स्पीशीज है जो डिसअपियर हो जाती है. उसकी वजह यही है कि हमारी माहौल में कुछ तब्दीलियां आती हैं, एंड कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं, हम कहेंगे कि वो बारसस वजूद में आती हैं, दैट दे appear, and these new species, they adapt themselves to the what we call as the changed environment, and this is called as natural extinction. Now in the mass extinction, कहा जाता है कि several species, many times, बहुत बार कुछ species ऐसी भी होते हैं, several species they disappear. कुछ ऐसे आफात समावी आते हैं, and what we say कि कुछ species, जो several species they disappear due to the catastrophes, and ये कहा जाता है कि that this mass extinction ये बहुत बार हुआ है in the past. I will give a very much example of this where we will see this mass extinction has taken place. कि जब हमने कहा कि एक टाइम ऐसा भी था ज़मीन पर when dinosaurs were called as the kings of this earth, and they disappeared. And what happened them, due to some catastrophes has taken place, कुछ आफत समावी ऐसी आ गई कि वो डायनासोर्स they will say that they disappear. And उस समय भी कहेंगे कि not on the dinosaurs, कि उस टाइम हम ये भी देखेंगे कि there has been the loss of more than 50% of the existing species at that time, at the end of the what we call the Cretaceous period. जो Cretaceous period में जो भी more than 50% of species वो भी खत्म हो गई. अब आज भी हम क्या देखते हैं कि अब नया एक आने वाला है, दैट इज दिस द ग्लोबल वार्मिंग. ये कहा जाता है दैट इट मे कॉज द मास एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर, एंड it is the matter of fear, it is the matter of where we will see जो scientists है, they are thinking about this, that this mass extinction we have to stop this. थर्ड जो है दैट इज द
एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन या वी कैन से जो एक्सटिंक्शन हो जाती है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस and what we will see there has been the loss of biodiversity takes place. उस हम क्या देखते हैं कि लेकिन ये वाला जो एक्सटिंक्शन है इट इज़ वेरी मच सीरियस बिकॉज व्हाट वी विल सी इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वाला एक्सटिंक्शन इट टेक्स प्लेस वेरी मच रैपिड, इट टेक्स प्लेस वेरी मच फास्ट, इट टेक्स प्लेस वेरी मच क्विक इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. व्हाट वी विल सी a large number of species they disappear from this earth. It has been estimated at World Conservation Monitoring Center that is WCMC, World Conservation Monitoring Center. It has been estimated that about 384 plant species which are जिसमें हम देखते हैं phanerogamus and about 533 animal species कहा जाता है that they have become extinct since 1600 AD. That means in the last 400 years, about 384 plant species have become extinct and 533 animal species have become extinct, and the total comes to 917 species, both plants and animals, they have become extinct. और ये कहा जाता है कि that this rate of extinction is 100,000 times to 10,000 times higher than the earlier rate. ये कहा जाता है कि अगर यही रफ्तार रह गई एक्सटिंक्शन की 1/3 to 2/3 जो हमारे पास जो हमारे पास करंट स्पीशीज इस वक्त मौजूद हैं, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट बाय द मिडल ऑफ द 21st century. कि अगर यही रफ्तार रहेगी कि इन द लास्ट 400 years about 900 plant and animal species they have become extinct, which is about 1,000 to 10,000 times higher than the earlier rate. कहा जाता है कि अगर यही रफ्तार एक्सटिंक्शन की रह जाएगी then what we will see that ये कहा गया है कि that about 1/3 to 2/3 of the current estimated species जो है they will become extinct by the middle of this 21st century. Now, according to IUCN, International Union for Conservation and Natural Resources, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, उस जगह का नाम है मॉर्गस. What it has done, it has maintained a red data book. IUCN, International Union for Conservation of Nature, whose headquarter is at Switzerland, उस जगह का नाम है मॉर्गस, and it is maintaining a red data book. And this red data book ये कोई किताब नहीं है, it simply this book it maintains a record of animals, उन animals का, उन species का, उन organisms का which are known to be under threat, which are known to be in danger. अब उसमें क्या देखा गया है, on the basis of the degree of threat, 8 red list categories have been identified. वो कौन से what we have see on the basis of this threat 8, what we have see they have made 8 red list categories on the basis of the threat. What are those? First one, extinct. Second one, that is extinct in the wild.
थर्ड जो उन्होंने बनाया दैट इज critically endangered. Number fourth, that is endangered. And number five, they have given it vulnerable. Number six, that is lower risk. Number seven, data deficient. And that is not evaluated. Last one. Go according to this IUCN in its red data book, what it has done, it has made the 8 categories. It has made the list of 8 categories on the basis of the threat. First one is the extinct. Extinct में हम उन्होंने वही डाले that के all the organisms, all the species of this, all the organisms of this species, all the individuals of the particular species are no more present on this earth. दूसरा है extinct in the wild. इसमें हमने क्या देखा कि सर्वे की गई है both in the wild, in the known or in the expected habitats, and they have found that no such species has been found. जो हमने पास है जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई है, इसकी कोई भी स्पीशीज जहाँ पर हमको ये पता था सर्वे की जाती है कि उस जगह पर जहाँ पर ये स्पीशीज पाई जाती है या उस जगह पर ऑन द एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर शायद पाई जाएगी, और ये देखा गया है कि नो इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज प्रेजेंट. Third is critically endangered. कि when an organism, when a species is facing an extremely high degree of extinction in the wild in near future. That means in the near future that this species it will become extinct. This is called as critically endangered. Endangered. अब इसमें वो species आते हैं, they are also facing a high risk of disappearance, but they are not critically endangered. They are not critically endangered. Then we have got vulnerable. It is not an endangered, it is not a critically endangered, but it is facing a high risk of disappearance. Fourth, what was another one? Sixth, lower risk. It has been evaluated कि हम ये कहेंगे कि देयर इज द रिस्क ऑफ लोअर रिस्क ऑफ बीइंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल. फिर हमारे पास है डाटा डिफिशिएंट. व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास, वेदर दैट इंफॉर्मेशन में बी डायरेक्टली, वेदर दैट इंफॉर्मेशन में बी इनडायरेक्ट, कि वहाँ पर हम जो हमारे पास डाटा होगा वेदर दैट इज डायरेक्ट वेदर दैट इज इनडायरेक्ट, क्या हम असेसमेंट जहाँ पर हम ये असेसमेंट करते हैं कि ऑन द असेसमेंट किसकी, एक्सटिंक्शन की करते हैं, और दैट इज नॉट इवेल्युएटेड व्हेन इट हैज नॉट बीन असेस्ड अगेंस्ट एनी वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया. नाउ जो हमारी इस रेड डाटा बुक में है ओनली 3, दैट इज दिस एंडेंजर्ड, देन वी हैव गॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड दिस वी हैव गॉट थर्ड दैट इज कॉल्ड एज द वल्नरेबल. वो हमने ज़्यादातर डिस्कस किए हैं. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की अगर हम बात कर लेंगे, दीज आर दो स्पीशीज़ जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है टू ए क्रिटिकल लेवल, या हम ये कहेंगे जिनका जो नेचुरल हैबिटेट है इट हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड. सो अगर ऐसे ही हालात रह जाएंगे कि उनका हैबिटेट भी ख़त्म होने वाला है, उनकी तादाद कम होने वाली है, दैट इन द नियर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. रखा याद कि दैट वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. नाउ इन इंडिया जो हमारे पास है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, it provides us 4 schedules in which we categorize the fauna of India
based on their conservation status. Schedule first में it lists the rare and endangered species, जहाँ पर हम इन जानवरों को लीगली प्रोटेक्शन हाईली दे आर प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन। और ये कहा गया है कि इंडिया में लगभग 81 मैमल्स 38 स्पीशीज ऑफ 81 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, इंडिया में लगभग 30 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 18 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस ऐसे हैं विच आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। सो इसमें हम वो वाले लाते हैं कि जहाँ पर हम ये देखते हैं दीज आर दो स्पीशीज जिनका नंबर बहुत कम हो गया टू ए क्रिटिकल लेवल, या हम ये कहेंगे कि वो एनिमल जिनका हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड, और ये कहा जाता है कि अब उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि दैट दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। दूसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हम वो देखते हैं कि दैट दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन रादर एट ए वेरी हाई रिस्क, which are facing an extremely high risk of extinction in the wild in the near future, वो इसमें आता है। दूसरा हमारे पास है वल्नरेबल में वो स्पीशीज आते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा है, दे आर इन स्टिल एबंडेंट, बट जो उनका होम रेंज जो है इट हैज़ बीन, जो उनका हैबिटेट है इट हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड, जिसकी बदौलत से वो एंडेंजर्ड हो गए हैं। अगर ये हालात रह जाएंगे कि वी विल सी मनी इंडियन स्पीशीज जो कॉमन वल्नरेबल स्पीशीज है दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ब्लैक बक, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट गोल्डन लंगूर। सो दीज आर सम जो हमारे पास थे कि जो IUCN जिस पर उन्हें ज़्यादातर उसने जो लिस्ट उन्होंने बनाया था 8 का 8 में से सिर्फ जो 3 ज़्यादा, दैट इज़ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल, जिनकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब जो ये रेड डाटा बुक जो रेड लिस्ट है इट हैज़ गॉट सम यूजेस। फर्स्ट वन इट अवेयर्स, ये आम लोगों को अवेयर कर लेता है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, ये हमको आइडेंटिफाई कर लेता है, इट आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। और तीसरा ये हमको इट टू ब्रिंग अबाउट कि व्हाट आर द वेरियस कंजर्वेटिव मेजर्स विच वी आर गोइंग टू टेक प्लेस एट द लोकल लेवल, और कभी कभार ऐसे भी हालात हो जाते हैं जहाँ पर हम गवर्नमेंट को अब डायरेक्ट भी कर सकते दैट सच कंजर्वेटिव प्रोग्राम शुड बी टेकन so that these organisms जो हमारे पास endangered होने वाले, जो हमारे पास vulnerable हैं, that they may be conserved. So this red data list, it first ये हमको aware कर लेता है, it gives us the list of the animals, it gives us the list of the species which are going to be which are at the higher risk of what we call as the endangerment, जहाँ पर वो जिनकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो इससे हमको अभी भी पता चल जाता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं, जब हमारे पास लिस्ट आती है, वी गेट अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दो थ्रेटन्ड स्पीशीज। सेकंड जो हमारे पास बात आती है कि दैट इट हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होती है कि कौन कौन से स्पीशीज दे आर एंडेंजर्ड। थर्ड हम ये कहेंगे कि दैट व्हेन वी नो दैट दिस स्पीशीज इज गोइंग टू बी एंडेंजर्ड, कि ये स्पीशीज अब एंडेंजर्ड होने वाली है, ये एंडेंजर्ड है, वी विल टेक सम conservative measures in order to save this, in order to protect this, which we feel जो हमको महसूस हो जाएगा कि that this step is very much necessary for the conservation, और हम गवर्नमेंट को भी अवेयर कर लेंगे कि that we have to take some such steps in order to preserve, in order to protect that species from being endangered. This was all about today in today's video. In the next video we will continue this what we call as this biodiversity conservation. Until then, goodbye, God bless you, thanks.